limit of a function डेफिनेशन लिखिए, देखिए उसमें लिखा है स्टार्टिंग लिमिट ऑफ द फंक्शन की डेफिनेशन जो है ft is real valued function. L is said to be a limit of ft when t approaches c. There must be exist a arbitrary chosen positive number epsilon about the radius L, ब्रैकेट में लिखा हुआ है about the radius L, however it is small but not equal to 0. आगे लिखा है we can find a corresponding number delta about the radius C such that mod of ft minus L is less than or equal to epsilon, 0 is less than mod of t minus c is less than delta, and delta is depending upon epsilon. ये डेफिनेशन लिखी हुई है लिमिट ऑफ ए फंक्शन की, जो कि आपको अभी बिल्कुल समझ में नहीं आई। अब इसको हम तीनों तरीके से, पहले एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं, उससे डिस्क्राइब करेंगे, फिर इसके बाद उसको ज्योमेट्रिकली डिस्क्राइब करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 1 3t minus 2 is equal to 1. t tends to 1, when you substitute 3 minus 2 is equals to 1, so you have to be compare ft is equal to 3t minus 2, L is equal to 1, t tends to c, c is equal to 1. Okay, now mod of ft minus L is equal to mod of 3t minus 2 minus 1 is less than or is equals to epsilon, which is given that. Now here 3t minus 3 is less than or is equals to epsilon, mod of t minus c is less than epsilon by 3, 3 common ले लिया, t minus 1 mod of is less than or is equals to epsilon by 3, and from the second one statement, this one, now c equals to 1, so we can say that mod of t minus 1 is less than or equal to delta. May be quite possible, it can be written also as this thing. So you see here, mod of t minus 1 is less than or equal to delta, mod of t minus 1 is less than or equal to epsilon by 3. If there is the only sign equal to, so you can say that delta equal to epsilon by 3 for equal sign only. Only for equal sign you can say that delta is equals to epsilon by 3. When delta is equals to epsilon by 3, certainly we can say that delta is depending upon epsilon. When you can change the value of epsilon, certainly you will get, ultimately delta will be changed. So we can conclude that delta is depending upon epsilon, right? So this is the description of the problem through the mathematics, through the definition. Here we can also better understand if we draw the graph, it's geometrically ft equal to 3t minus 2, consider t equal to 0, f0 is minus 2, t equal to 1,
f1 is 3 minus 2, that is 1. T equal to 2, f2, 3 2 just 6 to 4, t3, f3, 7 and so on. Okay. Draw the graph. When t equal to 0, the function is minus 2. This is, here it is considered t, this is ft, t equal to 0, ft is equal to minus 2. T equal to 1, f1 is equal to 1, this is 1, this is 1, this is the point 1 1. T equal to 2, f2 equal to 4, this is t equal to 2, 2, 3, 4, here it is. So, this is the straight line of the graph, that is 3t minus 2. This is the limit of the function L, and L is equals to 1. We must draw the line L equal to 1 parallel to the x-axis. Now what you can do? We consider some positive value from L. We can say that this is L plus epsilon, and similar as consider the same negative value is L minus epsilon. You know that the right hand limit and the left hand limit, okay. So here what we can do, there must be exist a arbitrary positive number epsilon, however it is small but not equal to 0. वो ये बताता है कि एप्साइलन वह छोटा धनात्मक नंबर है जो हमारे द्वारा चूज किया गया है। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए ये L बराबर 1 पे ये चीज दिखाई दे रही है, तो एक स्टूडेंट ने एप्साइलन का मान लिया 0.001, तो ये बन गया 1.001, और जितना 1 में 0.001 बनाया उतना ही 0.001 घटा दिया। तो L के दोनों साइड, निगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड, दोनों साइड आपको ये वैल्यूज मिल गई, ठीक है। और वो लिखा हुआ है कि ये कहां से आया एप्साइलन, हमारे द्वारा चूज किया हुआ नंबर है। इन दो पॉइंट से हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। ये फंक्शन को इस इंटरसेक्शन पॉइंट्स में काटती है, तो यहां हमने इंटरसेक्शन पॉइंट पे लाइन खींच ली, जहां से ये इंटरसेक्ट कर रही है, 1 2 3 पॉइंट इंटरसेक्शन किए, तीनों पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। ये था C बराबर 1 के, तो ये C के कुछ पॉजिटिव साइड उतने ही निगेटिव साइड हमें कुछ मिला, इसी को कह रहे हैं डेल्टा, C प्लस डेल्टा और C माइनस डेल्टा। लैंग्वेज पढ़ो, वहां लिखी है डेल्टा के लिए वी कैन फाइंड ए करस्पॉन्डिंग नंबर डेल्टा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है अबाउट द रेडियस C। ये डेल्टा जो है
लिखा है वी कैन फाइंड ए करस्पॉन्डिंग नंबर डेल्टा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है अबाउट द रेडियस सी, और फिर नीचे सच दैट लिखा हुआ है ये मॉड ऑफ एफ टी माइनस एल इज लेस देन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एंड मॉड ऑफ टी माइनस सी इज लेस देन आर इक्वल टू डेल्टा। तो अब यहां क्या देखिए, अब मैंने आपसे कहा कि एक स्टूडेंट इसको 0.001 लेता है। अब अगला सवाल कि क्या यह जरूरी है कि 0.001 ही लिया जाए? दूसरा स्टूडेंट है वो 0.00002 लेता है, एप्सिलॉन बदल गया, और एप्सिलॉन बदलने से ये जो L बराबर 1 था, मान लो किसी दूसरे स्टूडेंट ने एप्सिलॉन यहां लेने की बजाय यहां ले लिया, थोड़ा सा और ज्यादा ले लिया। जब यहां ज्यादा ले लिया तो यहां भी उतना ही कम हो जाएगा, और जब हमने इधर से ड्रॉ किया इसको तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहां आ गया, यहां बदल गए। तो इसका मतलब ये डेल्टा देखो ये बदल गया, पहले डेल्टा ये था, अब डेल्टा ये हो गया। किसके बदलने से हुआ? एप्सिलॉन के बदलने से। तो एक चीज तो क्लियर है कि जो डेल्टा प्राप्त हो रही है वो एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रही है। एप्सिलॉन को बदला जाए तो करस्पॉन्डिंग डेल्टा बदल जाता है। इसीलिए ध्यान दीजिए वहां पर लैंग्वेज में there must be exist a arbitrary chosen positive number epsilon however it is small but not equal to 0, ये लिखा हुआ है कि एप्सिलॉन हमारे द्वारा चूज किया हुआ छोटे से छोटा धनात्मक नंबर है जो बहुत छोटा है लेकिन जीरो नहीं है। अगर जीरो होता तो L प्लस जीरो और L माइनस जीरो हम L पे ही खड़े होते, तो जीरो नहीं है। हमने एक छोटे छोटा धनात्मक 0.001 लिया, तो ये रहा L प्लस एप्सिलॉन और ये रहा L माइनस एप्सिलॉन, और इसीलिए चूंकि ये बराबर रेडियस है तो उसमें लिखा हुआ है अबाउट द रेडियस L, कि ये L के अबाउट रेडियस लिया गया है। और एप्सिलॉन के बदलने पर डेल्टा, जो कि उसमें आगे लिखा है वी कैन फाइंड ए करस्पॉन्डिंग नंबर डेल्टा, करस्पॉन्डिंग वर्ड आ रहा है कि हम इस करस्पॉन्डिंग लेटर को प्राप्त कर रहे हैं। यस, ये प्राप्त कर रहे हैं। देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करके फिगर बताता है कि वी कैन फाइंड ए करस्पॉन्डिंग नंबर डेल्टा, वो भी किसके करस्पॉन्डेंस में? एप्सिलॉन के करस्पॉन्डेंस में। किसके अबाउट? अबाउट सी, तो इसलिए ब्रैकेट में लिखा है अबाउट द रेडियस सी, सच दैट मॉडुलस वाला तो हमने देख ही लिया, मॉड ऑफ एफ टी माइनस एल बराबर ये रहा एफ टी और ये रहा एल, तो इससे टी माइनस सी एप्सिलॉन बाई 3 और मॉड ऑफ टी माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। अगर ये इक्वल का निशान न भी हो तो इससे एक नतीजा निकलता है कि मॉड ऑफ टी माइनस 1 छोटा है एप्सिलॉन बाई 3 से और मॉड ऑफ टी माइनस 1 छोटा है डेल्टा से। That means certainly we can say that delta and epsilon have some relation, whatever be the relation. At present we can't say what is the relation between the epsilon and delta, but they have the relation. So that's why we are conclude that in the last, that is delta is depending upon epsilon. इसको अब एक बार और एक्सप्लेन करते हैं तो देखिए आपको अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा फिगर, और इसको देखते हुए हम डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। लिखा है एफ टी रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब दो वेरिएबल की वैल्यूज होती हैं, एक कॉम्प्लेक्स और एक रियल। हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्लेन की यानी कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूज की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रियल प्लेन की बात कर रहे हैं। तो टी जो है वो रियल वैल्यू है, इसलिए वहां पर लिखा है ft is real valued function. L is said to be a limit of ft.
भाई कोई फंक्शन होगा, उसकी लिमिट निकालनी है तो L उसकी लिमिट है। किस पॉइंट पर है? When t approaches C, जब t C की तरफ बढ़ रहा है। There must be exist a arbitrary positive number epsilon, however it is small but not equal to 0 about the radius L, L plus epsilon, L minus epsilon। आगे लिखा है we can find a corresponding number delta about the radius C such that mod of, इसमें L को इधर ले आइए तो यहां आएगा ft माइनस L। अब ft कहलाता है फंक्शनल वैल्यू और L कहलाती है लिमिटिंग वैल्यू। तो फंक्शनल वैल्यू एट एनी पॉइंट माइनस लिमिटिंग वैल्यू एट द सेम पॉइंट, इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो, हमें रिजल्ट धनात्मक लेना है, इसलिए हमने यहां पर मॉडुलस लगा दिया। यह रिजल्ट धनात्मक देता है। मॉड ऑफ -2 बराबर 2 और मॉड ऑफ +2 बराबर 2, तो ये रिजल्ट हमें धनात्मक यानी कि पॉजिटिव देता है। तो विच इज लेस देन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एंड मॉड ऑफ t माइनस c इज लेस देन डेल्टा, डेल्टा इज डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। ये डेफिनेशन लिखी है, ये उससे रिलेटेड सवाल लिखा हुआ है, ग्राफ खींच के ज्योमेट्रिकली वो बताया गया है। अब मैं आपको बताऊं कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू में क्या अंतर होता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने शादियों में वो सिर पे लाइट लिए रहते हैं, वो देखा होगा आपने। लाइट आप अगर दूर से वॉच करिए तो ऐसा लगता है कि दौड़ रही है, कभी छोटा गोला फिर इसके बाद छोटे से बड़ा गोला पे ऐसे लाइट चलती है और फिर आपको थोड़ी देर बाद उसका रिवर्स डायरेक्शन दिखाई देता है, वो कन्वर्ज होती हुई दिखाई देती है बड़े से छोटे गोले की तरफ। क्या है ये? आपने फिजिक्स में पढ़ा कि कोई पार्टिकल अगर कर्व पे मूव कर रहा है और हमें यहां पर चाहिए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो आप कहेंगे यू मस्ट ड्रॉ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट बिकॉज वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, सो दिस टेंजेंट शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। दैट इज योर टारगेट टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दिस पॉइंट। ओके, नाउ इस तरीके से सर्कुलर लाइट आपको अलग अलग सर्कल में दिखाई दे रही है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आप वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इंटेंसिटी ऑफ लाइट बता देंगे इवेलुएट करके कि यहां पर प्रकाश की तीव्रता ये है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहां से सेंटर से शुरू करके और पूरे आपके जो भी आउटर ऑर्बिट है वहां तक बताइए, तो चूंकि वो डाइवर्ज और कन्वर्ज कर रही है तो वो कहलाती है लिमिटिंग वैल्यू। इसका मतलब यही कारण है कि यहां पर बराबर नहीं लिखा जाता। t टेंड्स टू 1, t इज नॉट इक्वल टू 1। अगर t बराबर 1 दे देंगे तो वो वहां पर फंक्शनल वैल्यू को बताएगा, फंक्शनल वैल्यू एट दैट पॉइंट। और लिमिटिंग वैल्यू t टेंड्स टू 1 कि अगर हम 1 की तरफ ट्रेंड करें, जैसे हम सेंटर की तरफ मूव करें, तो वेरिएबल है, वेरी कर रही है, ये वेरी कर रही है, इसकी लिमिट बदल रही है। कैसे? t टेंड्स टू दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन लाइक दिस, t टेंड्स टू 1, दिस इज the limiting value. But when we put the particular value of the variable, that is the functional value at that point, that is the difference between the limiting value and the functional value. तो इस पे जो पॉइंट है, अगर किसी पॉइंट पे तीव्रता नापनी है तो वो फंक्शनल वैल्यू को बता रही है उस पॉइंट पर, और अगर हमको इस पे पूरी पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर देखना है तो ये लिमिटिंग वैल्यू को बता रही है। ये अंतर है दोनों में।
अब कुछ थ्योरी तो आपको बता दी, अब लिमिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ये कुछ लिमिट की प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैंने लिखी हैं, इसको देखिए एक एक करके निकालेंगे हम। अभी आप में इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ द लिमिट इस सेमेस्टर के अंदर नहीं है। ये प्रॉब्लम एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व हो सकती हैं, जो कि आपको आगे बताया जाएगा, इसलिए मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूं। अभी आपको एक्सपेंशन मेथड से लिमिट निकाल के बताएंगे। पहला देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन माइनस 1 ओवर x। e की पावर x का एक्सपेंशन लगा दिया, 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0, x कॉमन ले लिया, 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन ओवर x। x से x कैंसिल, x बराबर 0 दोगे, 0 0 0, 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो है पहला प्रॉब्लम हो गया, इसकी आंसर आ गया 1। e की पावर x का ये प्रसार आपने एक्सपोनेंशियल सीरीज में पढ़ लिया, 1 1 कैंसिल, x कॉमन लिया, x x कैंसिल और ये आ गया 1। लिमिट x टेंड्स टू 0, दूसरी प्रॉब्लम, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x लॉग a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन माइनस 1 ओवर x। a की पावर x का एक्सपेंशन हमने कर दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 से 1 कैंसिल, x लॉग a कॉमन लिया, 1 प्लस x log a अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x log a का होल स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन ओवर x। x से x कैंसिल, x टेंड्स टू 0 दोगे आप, ये x से मल्टीप्लाइड है, ये x से मल्टीप्लाइड है, 0 0, तो 1 प्लस 0 0 बराबर 1, और ये आ गया 1 इंटू लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ए। x से x कैंसल आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0,
1 plus x square upon factorial 2, x cube upon factorial 3 plus and so on माइनस e की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन आएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन अपॉन एक्स. This is equals to limit x tends to 0 1 plus x square upon factorial 2 plus x cube upon factorial 3 plus and so on minus 1 plus x minus x square by factorial 2 plus x cube upon factorial 3 and so on upon x. 1 से 1 कैंसिल. ये देखिए x दो बार आ गया. लिमिट x टेंड्स टू 0, ये और ये कैंसिल. जो टर्म जुड़ रही है 2x कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन अपॉन एक्स. एक्स से एक्स कैंसिल. और क्या रिजल्ट आया 2. लिमिट आ गई 2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन. लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n माइनस 1 अपॉन x. लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 ओवर फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन माइनस 1 ओवर x. 1 प्लस एक्स का होल पावर बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दिया. 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 ओवर फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन nc2 nc3 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन. 1 से 1 कैंसिल. ये आया लिमिट x टेंड्स टू 0 nx अगर कॉमन निकाल लें तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन ओवर x. x से x कैंसिल आउट हो गया. x टेंड्स टू 0 देंगे, ये सारी हायर टर्म्स 0 और ये बराबर आ गया n इंटू 1 बराबर n. तो दिस इज इक्वल्स टू n. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. लिमिट x टेंड्स टू 1 log x upon x minus 1. Let x minus 1 equal to h. इसमें वेरिएबल रिप्लेस कर रहे हैं. x माइनस 1 इक्वल टू h, x को h में कन्वर्ट कर रहे हैं. यहां पर लिमिट x की दी हुई है, तो जब x को h में बदला जाएगा तो लिमिट h की चाहिए होगी. तो when x tending to 1 then 1 minus 1 h tends to 0. तो ये बन गया लिमिट h tends to 0 log x equal to 1 plus h upon h. लिमिट h tends to 0. ये देखिए log 1 plus x बराबर आपको मालूम है h माइनस एच स्क्वायर बाई 2 प्लस एच क्यूब बाई 3 माइनस एच की पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन ओवर h. ये एक्सपेंशन लगा दिया. लिमिट h टेंड्स टू 0 h कॉमन 1 माइनस एच बाई 2 प्लस एच स्क्वायर बाई 3 माइनस एच क्यूब बाई 4 एंड सो ऑन ओवर h. h टेंड्स टू 0 आप देंगे तो ये हायर टर्म्स आपकी 0 हो जाएंगी और ये बराबर 1 माइनस 0 बराबर 1. तो अल्टीमेटली इसकी लिमिट आ गई 1. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. लिमिट x टेंड्स टू 0
e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, 2 minus 2, this is cancel, x positive x negative cancel, x square by 2 और x square by 2 दोनों जुड़ जाएंगे, ये आया लिमिट x टेंड्स टू 0 ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर ये कैंसिल होंगे, ऑल्टरनेट अब जुड़ेगा, प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन ओवर x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आया 1 अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन ओवर एक्स स्क्वायर कैंसिल, x बराबर 0 दोगे तो ये हायर टर्म्स 0, ये बराबर आया 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स ओवर x, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें इसके, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0, a माइनस बी ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे आएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, 1 से 1 कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 0 ट्वाइस एक्स अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, x बराबर 0 दोगे तो 1 प्लस 0 बराबर 1, 1 का अंडर रूट 1, 1 माइनस 0 1, 1 का अंडर रूट 1, 1 प्लस 1 बराबर 2 दैट इज 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। एक देखिए, एक सवाल आप लोगों को खुद करके लाना है, यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर लीजिए और इसको करके लाइए, बाइनोमियल एक्सपेंशन से आएगा ये सवाल, 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कर लीजिए, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये आपको करके लाना है, ये अगला क्वेश्चन है, इसमें मत करिएगा, यहां अगले क्वेश्चन में आप लिख के इसको करके लाइए। सेकंड वाले में x की जगह एक्स स्क्वायर कर दिया है मैंने, नेक्स्ट क्वेश्चन है x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाय एक्स, और एक आपको मैंने एक्सपोनेंशियल में बताया था, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x। दो प्रॉब्लम्स आपको
ये वाली बता चुका हूं, एक्सपोनेंशियल सीरीज प्रूफ करते समय बताया था, ठीक है। ये दोनों एक से क्वेश्चन है, ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, देखिए 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर एक्स, फंक्शन की पावर फंक्शन। अगर क्वेश्चन फंक्शन की पावर फंक्शन फॉर्म में दिया हो तो उसको लॉगरिथम लेके प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। यहां पर हमने से इट इज y, बोथ साइड टेकिंग log y is equal to limit x tends to 0 log 1 plus x to the power 1 by x, this is equals to limit x tends to 0 1 by x log 1 plus x is equal to log y limit x tends to 0 1 by x log 1 प्लस x का एक्सपेंशन हो गया x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन। लिमिट x टेंड्स टू 0, x कॉमन लिया, x बाई एक्स 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू लॉग y, नेचुरल लॉगरिथम है बेस e, लॉग बेस e y इज इक्वल टू x से x कैंसिल आउट हुआ, जब x बराबर 0 देंगे, दिस इज 0, दिस इज 0, ये आया 1, तो लॉग बेस e y इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू e टू द पावर 1, दैट इज e. What is y? Y is this. So the limit of the given function is equal to e. ओके, ये प्रॉब्लम आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बिल्कुल ऐसे ही करनी है। यहां पर भी वही है, फंक्शन की पावर फंक्शन, आप लॉग लीजिए x log 1 प्लस 1 बाई एक्स, इसके बाद उसका एक्सपेंशन कर दीजिए और फिर उसे काट के, और वैल्यू आपको एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट है तो वहां पे वैल्यू आपकी आएगी e. लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट बाय सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम से आपको ये प्रूव करना है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। देखिए, अगर इसमें मेथड स्पेसिफाई होके ना आए तो इसको करना बहुत आसान है, 2 स्टेप में ये निकल आएगा, वो भी बता देता हूं आपको। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा को लिखेंगे थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन अपॉन थीटा। ये एक्सपेंशन ऑफ साइन थीटा हो गया। साइन एक्स का एक्सपेंशन यही होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, एक प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, थीटा कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन ओवर थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल, थीटा टेंड्स टू 0 दोगे तो ये हायर टर्म्स थीटा की ये 0, 1 प्लस 0 बराबर 1। तो अगर इसको एक्सपेंशन मेथड से करना हो तब तो ये दूसरे लाइन में ही आ गया बड़ी आसानी से, लेकिन इसमें आपको दिया हुआ है सैंडविच थ्योरम से इसको करिए।
फिगर में देखिए, पहले एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे। एट एनी टाइम t, the particle at B, the polar coordinate of the particle is r theta. What is the mean of that? OB, the center of the circle, the radius vector of the point or the circle is r, and this line makes an angle with the horizontal is theta. That's why here the coordinate of B is r theta. This is known as a polar coordinate, r theta. Draw the shortest line BA. Draw the perpendicular from B on OC, which meets at the point M on OC or the horizontal. Now you see from the figure we can say that area of triangle OAB is less than area of sector OAB is less than area of triangle OCB. Is it okay? OCB is the triangle. Construction of this triangle, you see, if we must draw the tangent at B, this is tangent at B, produce the line which meets at C to the horizontal. So this is the triangle OCB. फिगर के अनुसार हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB छोटा होगा एरिया ऑफ सेक्टर OAB। सेक्टर के अंदर ही ट्रायंगल आ रहा है, तो इस ट्रायंगल का एरिया छोटा होगा इस सेक्टेरियल एरिया से, और ये सेक्टेरियल एरिया छोटा होगा इस बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया से। अब हम एक एक करके इवैल्यूएट करेंगे। OAB का अगर हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB is 1/2 base into height। देखिए, this is the base, base is the radius of the circle, that is r। हाइट निकालने के लिए इस ट्रायंगल में साइन थीटा लें, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस r। सो परपेंडिकुलर BM इज इक्वल टू आ गया r साइन थीटा, तो ये बराबर आया 1/2 बेस इज r, हाइट इज r साइन थीटा, दैट इज 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। सेक्टर का एरिया देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर OAB सेक्टेरियल एरिया में होता है 1/2 रेडियस इंटू आर्क लेंथ। ये फॉर्मूला होता है। आर्क आप पढ़ चुके हैं, इसका सेक्टेरियल एरिया निकालना है। एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। एंगल है थीटा, ये आर्क हो गया, रेडियस आर, आर्क बराबर आ गया r थीटा। ओके, ये बराबर आया हाफ ऑफ r इंटू r थीटा इज 1/2 r स्क्वायर थीटा। ट्रायंगल OCB में, इस OCB में
हमारे पास tan थीटा या उसी निकाल दें cos थीटा बराबर OC बटा OAR, OC बराबर हो गया R cos थीटा। तो इस एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB is 1/2 बेस OC R cos थीटा, हाइट इसकी यही है BM जो हमने पहले निकाल ली, और वो निकाली R sin थीटा, ये बराबर आया 1/2 R स्क्वायर sin थीटा cos थीटा। तीनों की वैल्यू आ गई, इसकी तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर ये आया 1/2 R स्क्वायर sin थीटा इज लेस देन 1/2 R स्क्वायर थीटा इज लेस देन 1/2 R स्क्वायर cos थीटा sin थीटा। 1/2 R स्क्वायर से कैंसिल, sin थीटा इज लेस देन sin थीटा cos थीटा, 1/2 R स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। 1 इज लेस देन थीटा बाई sin थीटा इज लेस देन cos थीटा। sin थीटा से पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया, sin थीटा बाई sin थीटा बराबर 1 थीटा अपॉन sin थीटा, और वहां से sin थीटा कैंसिल आया तो वो हुआ cos थीटा। रेसिप्रोकल लेने पर 1 इज ग्रेटर देन sin थीटा बाई थीटा इज ग्रेटर देन 1 अपॉन cos थीटा। आप लिखेंगे इधर टेकिंग रेसिप्रोकल। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो बड़ी आसानी से समझाता हूँ आपको। देखिए, अगर लिखा हो 2 इज लेस देन 3 इज लेस देन 4, ठीक है, तो यहां पर जब आप करोगे 1/2 1/3 1/4, तो 1/2, 1 के 2 हिस्से, 1 के 3 हिस्से, 1 के 4 हिस्से, तो आपको ये लिखना होगा। तो इसका मतलब रेसिप्रोकल के समय अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो साइन बदल जाएगा, लेस देन की जगह क्या आ जाएगा। समझ में आ गया सबके? ये हमारा टारगेट था लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा निकालना। कंसीडर द लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थ्रू आउट द एक्सप्रेशन थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 अपॉन कॉस थीटा। थीटा इधर ना तो थीटा कोई आ रहा है, सिर्फ 1 है, थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसकी लिमिट तो हो गई 1। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज ग्रेटर देन, थीटा टेंड्स टू 0 दोगे कॉस 0 बराबर 1 और 1/1 बराबर 1। एक्चुअली इसके बाद सैंडविच थ्योरम लगेगी, वो क्या होती है उसको समझो। यहां तक तो आपने ज्योमेट्रिकली निकाल दिया, अब सैंडविच थ्योरम लगानी है। सैंडविच थ्योरम होती है fx gx rx, 3 फंक्शन है, fx is less than gx and gx is less than rx। किसी पॉइंट मान लीजिए x टेंडिंग टू a पर कोई पॉइंट लेते हैं, इस पहले फंक्शन की लिमिट है l सपोज करो, और बाद वाले फंक्शन की सेम पॉइंट पर लिमिट है l। अगर ऐसा है तो बीच वाले फंक्शन की भी लिमिट इसी पॉइंट पर l होगी। दिस इज नोन एज ए सैंडविच थ्योरम।
ये हमारा अपर फंक्शन, ये लोअर फंक्शन और एक बीच का फंक्शन है। अपर और लोअर फंक्शन की किसी एक दिए हुए पॉइंट पर अगर लिमिट बराबर है तो बीच वाले फंक्शन की लिमिट उसी पॉइंट पर उसके बराबर होगी। दिस इज नोन एज ए सैंडविच थ्योरम। यही यहां पर लिखा हुआ है। यहां देखें कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो इन दोनों फंक्शंस के बीच में लाई करता है, और हमने देखा कि अपर और लोअर थीटा टेंड्स टू 0 पर ये भी 1 हो रहा है और ये भी 1 हो रहा है। तो सैंडविच थ्योरम के स्टेटमेंट के हिसाब से कहा जा सकता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। ये साइड में आपको एक्सप्लेन करना होगा सैंडविच थ्योरम जो मैंने बताई है। बेटर होगा कि आप मैथमेटिकली ऐसे ही बता दें। यहां लिखें सैंडविच थ्योरम, दिस फंक्शन इज लाइंग बिटवीन द टू डिफरेंट फंक्शन at the same point, limit of this function is L, that is L. So the limit of the between function at the same point is again L, that is known as a sandwich theorem. उससे ये आ गया। इसी में आगे देखिए एक क्वेश्चन होता है tan थीटा बाई थीटा भी 1 होता है। ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। ये कैसे होता है? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा टेंड्स टू 0 1 अपॉन 1 इज 1, cos 0 equal to 1, so this is 1. This is also one of the standard result, limit theta tends to 0 sin theta by theta. लिमिट इसी में देखिए x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax इंटू ax साइन bx इंटू bx अपॉन bx। ऐसा कर दिया हमने। इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज करना चाहते हैं। x टेंड्स टू 0 है तो ax टेंड्स टू भी 0 होगा, दोनों तरफ a का गुणा कर दो। x टेंड्स टू 0 है तो bx टेंड्स टू भी 0 होगा, दोनों तरफ bx का गुणा कर दो। तो देखो साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 1, तो इसने तो रिजल्ट दिया 1। bx अपॉन साइन bx, ये bx टेंड्स टू 0 1, x से x कैंसिल, ये आ गया a बाई, तो इसकी क्वेश्चन की लिमिट हो गई a बाय b। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n a टू द पावर n ओवर x माइनस a। चलिए निकालिए इसको। लेट x माइनस a इक्वल टू h, when x tending to a, h tends to 0, this is limit h tends to 0, x equal to a plus h का whole n minus a to the power n over h। ऐसा सब्स्टिट्यूशन करके हमने वेरिएबल को रिप्लेस किया है, x को h में बदल दिया। x की लिमिट a थी, उसी के करस्पॉन्डिंग h की लिमिट हो गई 0। यहां से a कॉमन निकालेंगे इसी स्टेप में। देखिए तो आएगा a की पावर n और ये आ जाएगा 1 प्लस h बाय a। इज इट सो? 1 प्लस h बाय a, ये बाय लिखा हुआ है, बाय a टू द होल पावर n, a टू द पावर n।
लिमिट h टेंड्स टू 0, a टू द पावर n पूरे से कॉमन आ गया, 1 प्लस h बाय a टू द होल पावर n माइनस 1 ओवर h, लिमिट h टेंड्स टू 0, a टू द पावर n, बाइनोमियल एक्सपेंशन करें, 1 प्लस n h बाई a n माइनस 1 ओवर फैक्टोरियल 2 इंटू h स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन माइनस 1 ओवर h, 1 से 1 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0, a टू द पावर n h बाई a, निकाल लिया पहला स्टेप पूरा कॉमन, 1 प्लस n माइनस 1 ओवर फैक्टोरियल 2 इंटू h बाई a प्लस एंड सो ऑन ओवर h, h टेंड्स टू 0 दोगे, हायर टर्म सारे 0 हो गए, h से h कैंसिल हुआ, a ऊपर चला गया, n a की पावर n माइनस 1, ये इसकी लिमिट हो गई, n a की पावर n माइनस 1। इस तरीके से एक्सपेंशन मेथड से लिमिट की जितनी प्रॉब्लम है वो आपकी सब सॉल्व करा दी। अब नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन चलेगा।